as well as all the PGT chemistry, and not only that, also BSc, MSc, all the point of view. So now I have to start with cohesion chemistry. There must be, you have to know that is in organic chemistry most important chapters are what? आपका जो GOC reaction mechanism, mostly the reaction mechanism, reagent chemistry, pericycle, these are most important. इन फिजिकल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी और सॉलिड स्टेट, ये जो तीनों है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है कोएशन केमिस्ट्री। देन यू हैव टू नो अबाउट ऑर्गेनोमेटालिक, देन यू हैव टू नो बायोऑर्गेनिक एंड ऑल्सो मॉस पावर एंड ईपीआर स्पेक्ट्रम। So first you have to know that is introduction. Introduction means you have to know that is what do you mean by cohesion compound. Okay, and you have to know that is there must be some type of bond in between of metal and ligand is there. आपका मेटल और लिगेंड के बीच में एक क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। तो वो बॉन्डिंग कैसा है, वो कोवैलेंट बॉन्ड है या फिर आयनिक बॉन्ड है या फिर कोडेड बॉन्ड है। ठीक है, okay. So already go before going in detail, I already tell there my all the videos are basically 3 language I have to follow, that is English, Bengali and Hindi. And because most of the people many people are outside of the my state West Bengal, so that's why I have to take Hindi also, and many people outside of India, so I have to take English. So that is introduction. तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन, इन इंट्रोडक्शन यू हैव टू नो व्हाट डू यू मीन बाय मेटल। मेटल इज मोस्टली इलेक्ट्रोडेफिशिएंट, ओके, पॉजिटिवली चार्ज, और समटाइम्स इट मे बी एग्जिस्ट एटम, जैसे आपका निकल CO होल पर, निकल इज प्लस, नॉट प्लस माइनस, दैट इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, कैन बी हैपन। ओके, आपका मेटल के ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, और क्या होगा, लिगैंड। लिगैंड और मेटल का जो इंटरेक्शन होता है, बाहर से एक एंटिटी प्रोड्यूस होता है, वो एंटिटी डिसोशिएट नहीं करता है, डिसोशिएट होकर मेटल और लिगैंड प्रोड्यूस नहीं करता है, एक सिंगल एंटिटी की जैसा थर्ड ब्रैकेट में रहता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेशन कंपाउंड। सिंपल थिंग है। सो मेटल इज इलेक्ट्रोडेफिशिएंट, दैट्स व्हाई it having scarcity of electron. ठीक है, and ligand is already electron rich. It may have lone pair or it may have negative charge. So it always try to donate its lone pair or negative charge to the metal. That's why there should be coded bond is there. And you know in coded bond क्या होता है आपका, one should be electron donor, other should be electron acceptor. There should be donor acceptor relationship. Okay, so that should be occur in coordination compound, especially cohesion pair. Okay, and next one you have to know primary valency, secondary valency in introductory part. What do you mean by primary valency, what do you mean by secondary valency, how that should be satisfied. ठीक है, और क्या होता है, आयनाइजेशन पेयर, कोऑर्डिनेशन पेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द स्पेयर। ओके, और क्या होता है, डबल सॉल्ट और कोहेशन कंपाउंड का जो डिफरेंस होता है, अगर आप डबल सॉल्ट को डिसोशिएट करो तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आयन शो देयर रेस्पेक्टिव पॉजिटिव टेस्ट। ओके, बट व्हेन यू हैव टू डिसोशिएट cohesion compound, there should be one single entity where metal ligand are bonded to each other, that should be intact in nature, never be dissociated. So that's why in cohesion compound, especially cohesion compound, there must be some defined characteristic can be shown. Okay, कुछ defined properties show होता है, तो वो हम कैसे पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। and not only that, there should be, you have to study Werner, who give the idea, who first give idea about idea octahedral complexes structure. Okay, and cobalt Cl3 NH3 type complexes, how that should be vary with respective colors. बहुत सारा वेरिएशन होता है कलर का एक सिंगल फॉर्मूला में। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे इन इंट्रोडक्टरी पार्ट, ऑलरेडी आई डिस्कस दैट। नेक्स्ट वी हैव टू रीड लिगैंड्स। लिगैंड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, बट विद रेस्पेक्ट टू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी मतलब क्या होता है, आपका कितना सारा लिगैंड जुड़ा होता है मेटल के साथ, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी।
With respect to denticity, you can classify first monodentate and then polydentate. Okay, and then this polydentate should be classified as didentate, tridentate, tetradentate, hexadentate and so on. और भी क्लासिफिकेशन होता है with respect to nature. क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटल लिगैंड, एम्बीडेंटल लिगैंड, बीजिंग लिगैंड, मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड. ओके, नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? होमोलेक्टिक, हेटेरोलेक्टिक. होमोलेक्टिक दैट मीन्स सेम टाइप का लिगैंड अटैच है मेटल के साथ. सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स शुड बी अटैच विद द मेटल, दैट मीन्स होमोलेक्टिक. But when the ligand variation is there in the coefficient pair, that should be called heterolectic. That's a nickel CO whole 4. That is, all the ligands are same, all are CO, all are carbonyl. So that should be goes to homolectic. But when you have to substitute one CO by any other ligand, that should be goes to heteroleptic. Next, you have to predict structure. That is the respective structure of each and every coefficient compound. That is structure by VBT. You have to know their hybridization, sp3 or sp3 for tetrahedral, for D2 sp3 or sp3 D2 for square planar. DsP2 or sp2D, that is for square planar, and D2 sp3 or sp3 D2 for octahedral. So by this classification you can get the idea, that is the octahedral or outer sphere or inner sphere, inner orbital or outer orbital, octahedral. The complex are square planar or tetrahedral. So all the classification can be determined by the structure. Then isomerism. In isomerism, you have to know the structure isomerism. That means linkage isomerism, hydride isomerism, cohesion pair, cohesion position isomerism, cohesion isomerism. Okay. And then you have to know stereoisomerism. Stereoisomerism, that should be basically two types. एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. जियोमेट्रिकल मतलब क्या होता है? वहां पर सिस ट्रांस होगा या फिर फैक और मार होगा. ओके. और क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. वो बेसिकली बेस्ड ऑन एनांशियो मार रिलेशनशिप, मिरर इमेज रिलेशनशिप, no mirror image relationship, this type of phenomena. Then nomenclature. Each and every complex compound का एक अलग सा एक nomenclature का रूल होता है. ठीक है. अगर कैटायन हो तो कैसे होगा, एनायन हो तो कैसा होगा, न्यूट्रल हो तो कैसा होगा, कौन सा लिगेंड का क्या होगा, किसका लास्ट का जो ई ओ हो जाएगा, तो वो उसका अलग से स्पेसिफिक एक रूल होता है. नेक्स्ट यू हैव टू नो थ्योरीज. थ्योरीज मतलब क्या होता है? VBT फर्स्ट वन. VBT इज यूजफुल फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. मैंने पहले बोला D2 sp3 sp2 D2, वो भी डिस्कस होता है VBT के से. ठीक है. देन आपको पढ़ना है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो जब भी कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं करता है, आप D बोलो, F बोलो और P बोलो, सबका लेवल्स डीजेनरेट होता है, मतलब एनर्जी एक ही लेवल का होता है. ठीक है. तो P ऑर्बिटल में जब आपका लिगेंड अप्रोच होता है तो उतना अच्छा सा रिपल्शन नहीं होता है, तो उतना अच्छे से इफेक्ट नहीं होता है. टीजेनाइट की जैसा ही रहता है. ठीक है. बट व्हेन इन D orbital, दिस 5 levels should be big. In which way? That is T2G or EG. Okay, T2G means dxy, dyj, djx, and EG means dx square minus y square, dz square. And in this portion you have to know the each and every orbital shape and their combination. जो dz स्क्वायर होता है वो दो ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. और एक ऑर्बिटल जो होता है उसका भी स्प्लिटिंग होता है, पर उसको हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इंटीग्रिटी बहुत कम होता है. नेक्स्ट वन स्पाइनल. और थ्योरी में और क्या होता है? इलेक्ट्रिक होता है. A1G, T1G, T2G, वहां से आता है टानाबे सुनाबे डायग्राम होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन स्पाइनल. स्पाइनल बेसिकली 3 टाइप्स. एक होता है नॉर्मल स्पाइनल, दूसरा मिक्स स्पाइनल, देन इनवर्स स्पाइनल. ओके. तो नॉर्मल स्पाइनल एक जैसा होता है, मिक्स स्पाइनल तो वहां पर एक कांस्टेंट का वैल्यू भी होता है जो कांस्टेंट प्रेडिक्ट करता है कौन सा स्पाइनल कैसा होगा. और उसका छोड़कर भी और भी ट्रिक होता है, जैसे आपका जिंक का CFC 0 होता है, निकल का एक होता है, आपका जो P ब्लॉक है वहां पर CFC 0 होता है. तो नॉर्मली दे गोज टू नॉर्मल स्पाइनल. ठीक है.
Next one, color spectra. Next one, color spectra. Okay. नेक्स्ट ऑन कलर स्पेक्ट्रा. आपका जब कलर स्पेक्ट्रा होगा ना, तो कलर स्पेक्ट्रा में याद रखना, देयर शुड बी द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देयर मे बी कलर कैन बी जनरेट. एक होता है डी डी ट्रांजिशन होता है, डी से डी ट्रांसफर होता है. एक होता है चार्ज ट्रांसफर होता है. कोई भी लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसको बोलते हैं एलएमसीटी. और मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, दैट इज एमएलसीटी. ठीक है. और क्या होता है, इंटर लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होता है. पॉरफायरिन जैसा कॉम्प्लेक्स होता है जहां पर वहां पर आपका एक पाई टू पाई स्टार के लिए कलर जनरेट कर सकता है. ठीक है. और क्या होता है, एप सेंटर, सॉलिड स्टेट में एप सेंटर होता है. और क्या होता है, स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा भी होता है. और क्या होता है, आपका कलर के लिए सिलेक्शन रूल पढ़ना है. वहां पर एक रूल होता है स्पिन सिलेक्शन रूल, डेल एस इक्वल टू 0. ओवरऑल डेल एस शुड बी इक्वल टू 0 होता है. और डेल एल इक्वल टू +-1. मतलब क्या होता है, आपका एस टू एस ट्रांजिशन इज नॉट फेवरेबल, एस टू पी ट्रांजिशन फेवरेबल, बिकॉज डेल एल शुड बी +1. तो आपका डेल एल +1 और मे बी -1 शुड बी, अदरवाइज दिस ट्रांजिशन नॉट फेवरेबल. अगर वो ट्रांजिशन हो भी जाए, आपका इंटेंसिटी वो क्या होगा, लो आएगा. ठीक है. इसलिए डी टू डी ट्रांजिशन कैन बी ऑकर, बट देयर इंटेंसिटी दैट शुड बी लो, pale yellow color. Why? Because del L is 0 on that transition. Okay. Next one, you have to know magnetism. Magnetism का एक अलग अलग फॉर्मूला होता है. When you have to know that is lanthanide, there must be, you have to first find out G value. That is G equal to 3/2 plus S into S plus 1 minus L into L plus 1 by 2J into J plus 1. Okay. And then you have to find out mu value equal to G into root over J into J plus 1 Bohr magneton. Okay. That is for lanthanide. But when you have to come across in D block, because cohesion compound mostly made by D block, आपका cohesion compound ज़्यादातर D block से प्रोड्यूस होता है. तो वहाँ पर क्या होगा, एक स्पिन का एक रूल होता है, म्यू स्पिन वैल्यू रूट ओवर n into n plus 2 बोर मैग्नेटन. दूसरा एक होता है जहाँ पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, रूट ओवर 4s into s plus 1 प्लस l into l plus 1 बोर मैग्नेटन. और तीसरा होता है आपका टेम्परेचर के लिए भी वैल्यू चेंज होता है. और एक होता है म्यू इक्वल टू म्यू स्पिन 1 माइनस अल्फा लैम्डा बाय डेल्टा. दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला कैन बी देयर. ओके. नेक्स्ट वन, यू हैव टू फॉलो स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी दो टाइप का होता है, एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, दूसरा काइनेटिक लेवालिटी. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल है आपका कंपाउंड, तो वहां पर आएगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड आल्सो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट. ठीक है. तो ज्यादातर क्या होता है, आपका जब भी सब्स्टिट्यूशन होता है, सोचो निकल CO होल 4, तो 4CO, जो 4CO है, जो 4CO है, वो आपको रिप्लेस करना है. तो आपका ईच एंड आप जितना पोसिट करोगे, आपका के वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा. ठीक है. पर कभी कभी जो लास्ट का जो के वैल्यू वो बढ़ जाता है, उसका रीजन होता है, दो कारण होता है. एक होता है अगर आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाए, सोचो आपका ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल हो गया, तो वहां पर आपका एक अलग सा चेंज होता है, वहां पर लास्ट का जो के वैल्यू वो बढ़ जाता है. और दूसरा होता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड चला आता है लास्ट स्टेप में, तब भी आपका लास्ट का के वैल्यू बढ़ जाता है. और दूसरा क्या होता है, काइनेटिक लेवालिटी. तो जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, dz² dx² minus y², these two axes are basically along the axis where the ligands are directly approach, right? तो जहां पर लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच करेगा, वहां पर ज्यादा रिपल्शन होगा. ओके. ओके. सोचो आप कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, वहां पर बहुत भीड़ है, तो ज्यादा भीड़ कहाँ पर होगा, जो डोर साइड होगा वहां पर होगा, या फिर विंडो साइड. विंडो से कौन जाने का कोशिश करेगा, राइट? ज्यादातर लोग विंडो में ही जाएगा, सॉरी डोर में ही जाएगा, राइट? तो वैसा ही होता है आपका, दो टाइप का एक्सिस होता है, एक अलोंग द एक्सिस होता है, एक बिटवीन द एक्सिस होता है. तो लिगेंड हर वक्त अलोंग द एक्सिस के ऊपर ही आता है.
तो अलोंग द एक्सिस में क्या होता है, डी जेड स्क्वायर होता है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो रिपल्शन भी मैक्सिमम होता है डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दैट्स वाई वहाँ पर क्या होता है, जेड आउट और कभी कभी जेड इन भी हो सकता है। तो उसके वजह से आपका काइनेटिक लायबिलिटी चेंज होता है। जेड आउट में ज्यादा काइनेटिक लायबिलिटी होता है, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, 2 बॉन्ड लेवल हो जाता है, और जो लेवल होता है वो ज्यादा इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन के जैसा नहीं है। ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन में आप क्या पढ़ा, SN1 SN2 SNI मैकेनिज्म, SNCB conjugate base mechanism, and SN1 prime SN2 prime, this type of mechanism. But there must be, we have to know that dissociative mechanism, associative mechanism, and associative mechanism in square planar complex you have to know interchange mechanism. तो associative में क्या होता है, आएगा उसके बाद जाएगा, ठीक है। डिसोशिएटिव मतलब क्या होता है, जाएगा उसके बाद आएगा, और इंटरचेंज में क्या होता है, एक से आएगा दूसरा जगह से चला जाएगा, ठीक है, ये बात समझना। उसके बाद आउटर स्पेयर इनर स्पेयर मैकेनिज्म होता है, जहां पर आपका एक ऑक्सीडेंट होता है वो इनर्ट होता है, एक रिडक्टेंट होता है वो लैबाइल होता है, और वहां पर बीचिंग लिगेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा मैकेनिज्म में हो, इनर में हो या फिर आउटर में हो। तो इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है। वहां पर रिमोट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, आपका एडजस्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है। लास्ट वन दैट इज मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स। मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन, उसका रिएक्शन, हेमोडायग्राम एंड द बेसिक फंडामेंटल थिंग। तो ये जो सारा चैप्टर है ये कवर कर रहा है एक बड़ा चैप्टर, एक एक्चुअल चैप्टर। दिस आर द नॉट द चैप्टर, दिस आर द टॉपिक, and this all the topic only discuss cohesion chemistry and all are important. Okay, so next day I will start with ligand. Already I discussed from introductory part. Now next day I will discuss from ligand. So thank you.